अगर इलेक्शन चलेगा तो बहुत ही, जब हमारा इधर वसई में बैलेट पेपर पे जितना गिनती हुआ, जो टीचर लोग थे, सरकारी अधिकारी थे, मेरा दोनों सीट से डबल मेरे को वोट गिरा था। तो अगर बैलेट पेपर पे कांग्रेस पक्ष को और महाविकास आघाड़ी को इतने अच्छे वोट गिरते हैं तो बैलेट पेपर पे चुनाव क्यों नहीं देते? अगर हिम्मत है तो मेरा चैलेंज है, बैलेट पेपर के चुनाव पूरे देश में चालू करो और उसका रिजल्ट देखो। इधर महाराष्ट्र में 75,000 लाख वोट कैसे विधानसभा के टाइम में हो गए, इधर आपने मेरे वसई विरार मतदार संघ में 25,000 4 महीने में हो गए, और जो हुए वही घातपात हो गया। इसलिए मैं जो चोरी का वोट गिरा था उसका मैं निषेध करता है। और हमारी आज की मशाल यात्रा है, ये चिंगारी बहुत जगह चलेगी और ये चिंगारी पूरे देश में भड़केंगी। राहुल जी है, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे है, इनका जो आवाज है तो पूरा देश में बुलंद होने वाला है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। इसके बाद अगला कदम क्या रहेगा? हमारे अभी महानगर पालिका आ रही है, पूरे हमारे महाविकास आघाड़ी पूरी तैयारी से हम लोग चालू है, और महाविकास आघाड़ी का और जो भी हमारे ऊपर से आदेश आता है, जो भी छोटी मोटी पार्टी हमारे से आती है, वो हम लोग इधर हमारे वसई वाले का राज लाएंगे। Yeah, today we are just gathered here at the Smashal Yatra. Smashal Yatra, so we are that Rahul ji 15 days before given the command match fixing in Maharashtra election. The Maharashtra election match fixing, we are all public also doubt now, because we know about it as a media person. You also know about very well. This is a assembly election that different way it is the result came. Before that, the parliament election we achieved Mahavikas Aghadi everywhere. And again the margin on 40 lakh voter, no voter. So where we how the detail. The detail you are asking about. The Mahayuti is saying because the Congress and the Mahavikas Aghadi has got defeated in this election, so they don't have the reason, so they are saying out. No, this is not the question about their answer, because Rahul Gandhi, the opposition leader, he has the constitution right. He raised one point and he is asking the question, the election commissioner. The election commissioner should give the answer, and why the mean between the BJP leader are coming here and give their argument and comment. It is not good. तो आपको मालूम है सब जगह पे तो हम लोग अभी ये स्मशान यात्रा कर रहे हैं। तो स्मशान यात्रा सब जगह पे कर रहे हैं। इस महाराष्ट्र में सब जगह पे करने के लिए अनाउंसमेंट करने है, तो 12 तारीख से 14 तारीख तक 12 से 14 तारीख तक अपन को नहीं कर दिया, तो हमको मालूम है इंसिडेंट हैपन अहमदाबाद, सो देन फ्लाइट एक्सीडेंट। तो इसके लिए हम लोग आज ये कर रहे हैं, तो देश के लिए, तो हम लोग के देश के अंदर ये सवाल देगा, डेमोक्रेसी इज अ वेरी क्वेश्चन मार्क। एंड the election commissioner, once upon a time, the TN Chetan, the person who came the election commissioner, उसी time सब लोग सोचता था इलेक्शन कमिश्नर कितना पावर है। Everything was very transparent. Yeah, everything is transparency, and the name made between the now the chief justice is not for the selection. Why it is not happened? It is either the answer. They have to give the proper answer. They are reduced, and BJP is wanted everything in their control, and it is the election commission also in their control now. The ED and CBI. That is always we are raising this point. Like everywhere, this is a doubt now. The public having doubt that we need to achieve. We are only the Congress party everywhere earlier, and visibility is available everywhere, and we are always fighting with the general public. Ask you is that what do you feel like while doing this rally, a Mashal Yatra, can make a difference in all this, because the election commissioner is not coming ahead to give answers, and the answer is coming from the government itself. So what do you feel making doing all this Mashal Yatra make a difference? This is actually our agitation. At that same time, so we are just giving letter to our collector and again the Indian President. So that is only we are depending now. Indian President can take the decision. At the same time, then we are raising the question. That question answer we need properly. That question answer who should give? The election commissioner. The transparency is required. This is not end. You are going to cut now local body election now. That is also we want to do. We are all public, the individual, public. Everybody is suffering nowadays. So they are always going for their job. They are busy schedule.
They are just even that situation that somebody raised their voice. That Rahul Gandhi, the only the one person raising the point everywhere, and same time the Congress party is vigilant about every small issue also. So this Mashal Yatra is combination of everything, even the what happened in the Maharashtra elections, about all this going on in the country, all the turmoil which are going on. Yes, it is not only the one particular point. The point which Rahul Gandhi ji raised, that time we supposed to do it, and then meanwhile the incident happened, the Ahmedabad blind crash, that we are all in the sorrow mood and we are always with the their public. Yeah, right. So that means we are very important is actually, but we want to give the public this public also should think about it. ये अभी हमारी शुरुआत है। ये मशाल यात्रा एक साइन देकर कि जिस तरह से वोट में महाराष्ट्र में, इवन पूरे देश में महाराष्ट्र का जो इलेक्शन हुआ, इसमें जिस तरह से घोटाला किया गया, जहाँ पे जिस यूथ की आबादी नहीं उतने वोटर नहीं है, उससे ज़्यादा वोटिंग काउंट होती है। जो राहुल गांधी जी ने भी ये मुद्दा उठाया है, ये आरोप नहीं था। अगर आरोप है तो इलेक्शन कमीशन साबित करे। अगर सिर्फ आरोप अगर इसको मानते हैं तो इलेक्शन कमीशन ने अपने डेटा से क्यों डिलीट किया, इसका जवाब कौन देगा? तो इस तरह से हम लोग अब क्या है कि जब तक हम लोगों की डिमांड है कि बैलेट पेपर से अगर वोटिंग होती है तो आप ये रिजल्ट दूसरा मिलता आपको महाराष्ट्र में। क्या महाराष्ट्र में ऐसा माहौल था? आप एक पत्रकार हैं, आप खुद कई जगह आप जाते होंगे। महाराष्ट्र में ऐसा माहौल था कि ये इसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, शिंदे गुट की सरकार बनेगी, ऐसा माहौल भी नहीं था। लोगों का ऐसी सोच भी नहीं थी। किसान 2019 से नहीं है, जब लोकसभा चुनाव भी था तब भी यही कहा गया था कि माहौल जो है वो बिल्कुल विपरीत चल रहा है सरकार के। 2024 में तो सीटें भी कम हो गई, तो इस हिसाब से इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बैलेट पेपर पे वोटिंग करा लो। बैलेट पेपर पे वोटिंग आप कराएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप अगर इस चीज से आप ये सोचे कितनी मतलब जैसे पहले इलेक्शन कमीशन पहले थे, जो TN शेषन एक एग्जाम्पल सेट किए थे उन्होंने कि जो इलेक्शन कमीशन का होता है रोल, वो उन्होंने दिखाया था, लीडर को इसको डर दिखाया था। ये इलेक्शन कमीशन तो जैसे कि मुखौटा बना हुआ है बीजेपी सरकार का। एक तर्क ये भी है कि जो है वो बड़ी जटिल प्रक्रिया है, और बैलेट पेपर से जो है वो करने के बूथ कैप्चरिंग का खतरा रहता है, बहुत कुछ उसके ऊपर रहता है। पर ईवीएम जो है वो सेफ। आप ये बताओ कि जितनी डेवलप कंट्रीज है, जापान हो गया, USA हो गया, क्या वहाँ पे ईवीएम से वोटिंग होती है? नहीं होती है। तो आप डेवलपिंग कंट्री है, जो वो डेवलप कंट्री है, वो ईवीएम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जिसने स्टार्ट किया ईवीएम का कंसेप्ट, ईवीएम कंसेप्ट स्टार्ट किया, वो जब मना किया, बंद कर दिया। क्यों बंद किया है? कुछ लूप होल्स होगा तभी तो। अगर लूप होल्स नहीं था तो उसने क्यों बंद किया? एक चीज। दूसरी चीज है, आपको अगर ऐसा लगता है कि बैलेट पेपर से ये होगा, लोग ये करेंगे, ये ईवीएम लूट हो रहा है, उसको आप क्यों नहीं बोलते? ये ईवीएम लूट है, लोगों के वोट को चोरी किया जा रहा है, लोगों के वोट को लूटा जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल रहेगा? अगर एक आम जनता के हिसाब से भी सोचते, आपको महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल गांव वाले ने सेट किया था इसी इलेक्शन में। जी, उन्होंने खुद से ही जो है वो वोटिंग इलेक्शन सिस्टम बना दिया था। हाँ, उनको उनके गांव में उनके हो नहीं पाया, लेकिन उनके गांव पे जहाँ पे बीजेपी को वोट नहीं मिला था एक भी, वहाँ पे वो लीड करते हैं। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ है, उसी तरह से पूरे पालघर जिला में भी ये चीज किया गया है। क्या वसई विरार जिला और पालघर जिला ये बच गया? उसी खेल में ये पालघर जिला, पूरा वसई विरार जिला, चाहे विजय पाटिल साहब कैंडिडेट हो, 12 बजे तक विजय पाटिल साहब लीड कर रहे थे, ये 3rd पोजीशन पे थे। आप अगर फाइट किससे थी? बहुजन विकास आघाड़ी के कैंडिडेट से, हितेंद्र ठाकुर से और विजय पाटिल से। 3rd पोजीशन वाले 1st पोजीशन, अचानक ऊपर आ जाना, ये सरप्राइज नहीं लगता है? ये सरप्राइज है ना? ये चोरी है, वोट की चोरी। इसको वोट की लूट बोलते हैं। पब्लिक के मैंडेट की लूट ये किया जा रहा है।
पब्लिक वोट अगर नहीं दे रही है उनको, फिर भी उनको वोट पड़ रहा है, ये लूट किया जा रहा है public। तो अब ये जो मशाल यात्रा है, क्या इसी से बदलाव आ जाएगा या कुछ और? नहीं, ये अभी ये मैंने बोला पहले ही, अभी ये शुरुआत है। इस तरह से अब कांग्रेस पार्टी रोड पे उतरेगी। हमारा जो भी पत्र व्यवहार है इलेक्शन कमीशन के साथ है, वो सब सारी चीज वो चलता रहेगा। एक सिस्टम वो रहेगा, दूसरा सिस्टम रोड पे लोगों को जागरूक करना कि आपके वोट की चोरी होती है। आप देखो, यूथ परेशान, किसान परेशान, नौजवान, जितने भी नौजवान सारे परेशान हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही। 45 साल का रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक कर दिया है। तो आप जितनी भी, हम लोग जब छोटे थे पढ़ाई करते थे, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा हर रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, बुक स्टॉल पे रेलवे की वैकेंसीज निकलती थी, बैंक की वैकेंसीज निकलती थी। जैसे आप बता दो, इतने टाइम से रिक्रूटमेंट हुआ है रेलवे में, क्यों नहीं हो रही सरकार? गवर्नमेंट जॉब काफी कम हो गई। तो ये गवर्नमेंट ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये लेके जा रहे हैं। यहाँ भी अभी सुनने में आ रहा है MCA-DCL को भी ये प्राइवेट अडानी को देने के चक्कर में। ये सब खेल है पूरी तरह। ये दो आदमी की सरकार 2+2 चल रहा है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और इधर बिजनेस होल्डर, ये 4 लोगों की सरकार चल रही है। ये 4 लोग गुमराह कर रहे हैं। मीडिया को पूरी तरह खरीद के रखे। मीडिया को अभी कुछ तो मीडिया स्वतंत्र है। हाँ, स्वतः मतलब आपकी बात नहीं, एक मेन एक्सट्रीम मीडिया जिसपे 90% लोग बिलीव करते हैं, जो सुनते हैं न्यूज में, घर पे, टीवी पे, बाद अब उसके ऊपर भरोसा टीआरपी खाली दिखाई जा रही मीडिया, अब लोगों का भरोसा नहीं रहा। लेकिन एक्चुअली होता क्या, नैरेटिव चलाते रहे, तो वो नैरेटिव घर के अंदर में वही चीज सुन रहे हैं, कंटिन्यू आपके बच्चे सुन रहे हैं, क्या असर पड़ रहा है बच्चे पे, क्या सोचेगा? तो बात ये हो रही है, वोट की चोरी हो रही है। उसके खिलाफ तो आज कांग्रेस पार्टी का आंदोलन मशाल यात्रा के तरीके पूरी आते हुए इलेक्शन में भी कुछ ना कुछ कमाल जरूर दिखाएगी। हाँ, बिल्कुल सीट है नहीं, बिल्कुल इस बार उम्मीद जरूर रखें और हम लोग अब रोड पर लड़ेंगे। हमारा मैसेज जो है इलेक्शन कमीशन को है, जिस तरीके से वोटिंग में जो धांधली हुई है लास्ट इलेक्शन में सबको पता है, और जिस तरीके से लोकसभा से और विधानसभा के इलेक्शन में जो वोटर बढ़े, तो उसका हमने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा, बट उन लोग कोई सटीक जवाब नहीं दे रहे। तो उनको बताने के लिए कि हम लोग इस तरीके का जो भ्रष्टाचार है वो सहन नहीं करेंगे, और जनता भी इस चीज़ से बहुत नाराज है। तो इसी आक्रोश को दिखाने के लिए रैली पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह पर निकाली जा रही है। आज हमारे वसई विरार में निकाली गई है, अनिल अलमेडा जी के नेतृत्व में। तो जो बीजेपी सरकार जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग कर रही है, बहुत गलत है, और ये आने वाले टाइम के लिए बहुत लोगों के लिए एक गलत मैसेज जा रहा है। तो इसके लिए हम कांग्रेस पार्टी रास्ते पे आई है और इलेक्शन कमीशन से एक सटीक जवाब चाहती है। जो एक आंकड़े चाहिए हमको, वो प्रोवाइड हमको नहीं कर रही है। तो हम इलेक्शन कमीशन को कहना चाहते हैं कि हमको जवाब दो, नहीं तो ये शांतिपूर्ण आंदोलन अभी हमने किया है। कांग्रेस के साथ तो लोग जुड़े हुए हैं सर, कांग्रेस लोगों के दिलों में है। ये कांग्रेस जनता के साथ, जनता के मुद्दों पे बात करती है, जनता के लिए काम करती है, ना के लिए बिल्डरों के लिए, अंबानी अडानी जैसे लोगों के लिए काम करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा आम आदमी के साथ में रही है, जमीनी स्तर पे जाके काम करने वाली पार्टी है, और हमारा इतिहास जो है वो गरीब लोगों के साथ में रहा है। जो पिछड़े लोग हैं, बहुजन लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोग के साथ में ही रहा है। राहुल गांधी जी ने सीधा आरोप लगाया था इलेक्शन कमीशन पर कि इस तरीके की धांधली जो है यहाँ पर इलेक्शन में हुई है। राहुल गांधी जी के ही ऐलान पर यहाँ पर जो है वो मशाल यात्रा निकाली गई। तो क्या लग रहा है कि अभी मशाल यात्रा से ही कुछ डिफरेंस हो जाएगा या कुछ और भी कदम उठाने जाएंगे? बिल्कुल, हम अगर आगे कुछ कदम उठाने की जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये सब भी होगा। जब हमको आदेश आएगा, पार्टी का आला कमान का आदेश आएगा, उस पर पार्टी काम करेगी। अगर इसमें ही अगर हो जाए हमारी मांगे पूरी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके आगे भी आंदोलन करने को कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आंदोलन से कभी घबराती नहीं है, और ये पूरा देश जानता है, और बीजेपी वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। यह इसमें कहना है जैसा कि आपने जनता का देखा है, आपको जुट देखा है जनता का। जनता ये जान चुकी है, जो इलेक्शन कमीशन में जो
वोटिंग एकदम ऊपर बढ़ा है, बैलेट पेपर पे होना चाहिए, सब लोग जानते हैं बैलेट पेपर में होना चाहिए। और ये बहुत काफी देर से मांग है कि बैलेट मांग मांग है, ईवीएम पर भरोसा नहीं रहा। ईवीएम पे भरोसा नहीं है, जनता का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ईवीएम पे, तो बैलेट पेपर पे होना चाहिए। और बैलेट पेपर में नहीं होना, ईवीएम पे होना, तो उसका रिकॉर्ड सामने जनता को आना चाहिए, जो जनता को आना चाहिए, अपनी पार्टी को आना चाहिए। जो हमने मांगा है वो मिला नहीं अभी तक रिकॉर्ड अपने को, तो उसका रास्ता सिर्फ यही है कि हम ये मांग करें कि बैलेट पेपर में होना चाहिए। तो उन्होंने जिनको चुना है वो सही कैंडिडेट है या नहीं है, आप देख ही रहे हो, सब भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो से ये सही बात है। तो जो है ये मशाल यात्रा के बाद भी जिस तरह से आपके जो बड़े पदाधिकारी ने कहा कि और भी जैसा हाईकमांड का ऑर्डर आएगा, जैसा उन लोगों का नेतृत्व में उनके चलेंगे, तो वैसा आगे बढ़ते जाएंगे। कैसे चलेंगे, पूरी तरह तैयार है कांग्रेस पार्टी, पूरी तरह तैयार है। पूरा जनता भी साथ में जुड़ रही है, जनता को भी पता चल रहा है क्या है, कहाँ वो लोग अपने आप को पीछे महसूस कर रहे हैं, वोट दे के गलती किया है, सबको मालूम पड़ रहा है। तो आगे अपेक्षा यही है, बैलेट पेपर की डिमांड कर रहे हैं, आपको ईवीएम को उसका डाटा चाहिए। मशाल यात्रा जो है पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। एक्चुअली ये जो मशाल के द्वारा हम लोग जो है महात्मा गांधी जी के विचार, पंडित नेहरू जी के जो आधुनिकता के विचार है, और ये जो सत्ता में जब थे कांग्रेस पार्टी, उनके जो विचार है, ये विचार किस तरह के थे, ये विचार फैलाने के लिए मशाल यात्रा की गई है। उसी तरह से 2014 से सत्ता में जो डरे हुए लोग बैठे हुए हैं, जो लोग वोटों की धांधली करते हैं, लोगों को जुमला देकर सत्ता में आते हैं, वो लोग किस तरह से डरे हुए होने के बावजूद इस सत्ता में बने हुए हैं, वो उस पे एक प्रकाश डालने के लिए ये मशाल यात्रा की गई है। जिस तरह से महाराष्ट्र में पिछला इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में जो धांधली हुई है, जो वोट बढ़ाए गए हैं, जैसे हमारे सीनियर लीडर्स ने गए, उसका डेटा अगर हम लोग इलेक्शन कमीशन से मांगते हैं तो इलेक्शन कमीशन उसका डेटा दे नहीं रहा है। इसका अर्थ है कि जो बातें हैं छुपाई जा रही है। ये जनता को पता चलना चाहिए कि हमने जो वोट दिया है उस आदमी को वोट गया है या नहीं गया है। सत्ता में बैठी हुई जो पार्टी है उसको जनता ने चुना है कि नहीं चुना है, ये जनता को जानने का पूरा अधिकार है। अगर आप इलेक्शन कमीशन को कठपुतली बनाकर जनता को बताने से मुकर रहे हो तो आप जो है देश की जनता से गद्दारी कर रहे हो। ये सीधा लोकशाही पर, डेमोक्रेसी पर एक तुम वार कर रहे हो। अभी जो अपकमिंग इलेक्शंस आने वाले हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के यहाँ पर जैसे गिराट इलेक्शन है, इस पर कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? क्या फिर महाविकास आघाड़ी से ही होने वाला है या कांग्रेस स्वतंत्र? महाविकास आघाड़ी के अंतर्गत विधानसभा इलेक्शन लड़ा गया था, लोकसभा इलेक्शन लड़ा गया था, लेकिन लोकल बॉडी इलेक्शन जो है उसके मुद्दे अलग होते हैं और उसके लिए जो है नया थिंक टैंक सीनियर लीडर बनाते हैं। सीनियर लीडर जैसे ऑर्डर करेंगे उस तरीके से ये इलेक्शन लड़ा जाएगा। हमें उम्मीद है कि महाविकास आघाड़ी संपूर्ण रूप से एकत्रित आकर सामर्थ्य के साथ ये इलेक्शन लड़ेगी और सत्ता में जो है यहाँ अभी तक रुके हुए लोग थे वो सत्ता में पहुंच जाएंगे। ये जो मशाल रैली है इसके बाद भी कुछ कदम उठेगा या सिर्फ मशाल रैली जो है वो कुछ सिग्निफिकेंस है कि बस मशाल रैली करनी थी तो कांग्रेस ने करनी? नहीं, ये कुछ सिग्निफिकेंस नहीं था। जनता में, सत्ता में बैठे हुए लोगों का जो रोष है वो दिखाने की कोशिश थी और ये रैली यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। आज मशाल रैली है लेकिन कांग्रेस के पदाधिकारी जनता में जाके जनता का काम कर रहे हैं और उस काम के भरोसे ही कांग्रेस के उम्मीदवार जो है जनता से वोट मांगेंगे और उसी के तहत जीतने की भी हिम्मत रखते हैं। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, कितना परसेंट देंगे आप अपनी उम्मीद को कि कांग्रेस जो है, क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ पर कांग्रेस की कोई सीट नहीं है, तो क्या लग रहा है कि इस इलेक्शन में कितनी सीटें आएंगी? हमारे अभी के जो लीडर है विजय पाटिल साहब, हमारे यहाँ के निरीक्षक है जोधो थॉमस जी और हमारे जो जिलाध्यक्ष है ओनिल अजमेड़ा साहब, उन्होंने पिछले 5 सालों में हर गली नुक्कड़ नाके पे जाकर कांग्रेस का झंडा बुलंद किया हुआ है। हर गली गली में कार्यकर्ता का एक चेन बनाया है। इसके तहत हम बता सकते हैं कि हम लोग 100% सफल होंगे।